لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود اور سلام ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی عزاداران ابا عبداللہ علیہ الصلوات والسلام. یقیناً ان مشکل حالات میں بھی دور و دراز سے عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے عزا خانے میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو دعا دینا چاہوں گا کہ خدایا بحق امام حسین علیہ السلام ان تمام عزاداروں کو، مرد اور عورت تماموں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدایا جو بھی عزادار مجالس حسینی میں شرکت کرتے ہیں، حسین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدایا ان کی جو بھی دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدا ان مومنین میں جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. خدایا ہمارے عزاداروں میں جو عزادار اور جو ذاکرین اور جو مرثیہ خان اور جو نوا خان اس دنیا سے گزر گئے ہیں سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. خدا ان تمام حسین کی عزاداری کرنے والے عزاداروں کو سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب اس حدیث میں ارشاد فرماتا ہے: ان الحسین حسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. پیغمبر فرماتے ہیں بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان ایمانی، چونکہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں آپ کو انشاءاللہ میں فارغ بھی کر دوں گا، لیکن جتنا وقت میرے دامن میں ہے اس میں چند مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا. بندے آخر کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا خطیب، کوئی بڑا ذاکر نہیں ہے، ادنا سے ایک طالب علم ہے. علماء کے در پر آئے ہیں، علماء کی بزم میں آئے ہیں تاکہ خود کی اپنی اصلاح کر سکیں. اس لیے کہ یہی علماء ہوتے ہیں جو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علموں اور آپ جیسے مومنین کی یہی علماء ہماری اصلاح کرتے ہیں.
जब तक आप किसी आलिम की बज़्म में जाकर 2 बातें नहीं करेंगे तब तक आप ख़ुद की इस्लाह नहीं हो सकती है। तो यूँ समझ ले मैं बतौर इस्लाह यहाँ पर आया हूँ ताकि उलमा से अपनी कुछ इस्लाह करा सकूँ। मुक़द्दिमा को तूल न देते हुए अपने मतालिब आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन बेशक हुसैन हिदायत की बेशक हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत याफ्ता लोगों के लिए, हिदायत पाने वालों के लिए एक चराग है। हिदायत पाने वालों के लिए चराग, हिदायत के चराग हैं और कश्ती है नजात के लिए। जिन लोगों को नजात चाहिए वो दर हुसैन पर आए। अब इसमें 2 जुमले आपको मिलेंगे, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा। पैगम्बर फरमाते हैं कि बेशक हुसैन हिदायत के चराग हैं। इससे बात ये समझ में आती है, जिन जिन मोमिनीन को, जिन जिन मुसलमानों को, जिन जिन इंसानों को हिदायत चाहिए वो दर हुसैन पर आइए, और जिन लोगों को भी नजात चाहिए वो दर हुसैन पर आए। आज़ादारान मज़लूम करब, आप हुसैन के आज़ादार, आप बेहतर जानते, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे ज़्यादा मुताला रखते हैं, किताबों पर नज़र रखते हैं, लिहाजा सिर्फ फ़िक्र करने की ज़रूरत है। दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा, वाहिद अज़ा खाना वो चीज़ होती है जहाँ पर किसी की क़ैद नहीं होती है, जिसमें क़ैद बंद नहीं हुआ करते, जिसमें शराइत नहीं होती है। अज़ा खाने का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई फ़लाँ मसलन इस्लामिया स्कूल में आज इमाम हुसैन की मजलिस बपा है, सिर्फ एक इतला दी जाती, किसी को इनविटेशन का कार्ड नहीं दिया जाता। लेकिन आप देखते हैं जब जैसे ही मोमिन खबर मिलती है मसलन इस इदारे में हुसैन की मजलिस रखी गई है, दूर व दराज से लोग तशरीफ़ लाते हैं। यकीनन मेरी सांसें फूल हो चुकी। मैं इतना लॉन्ग सफ़र भी, मैंने कहा कि इमाम हुसैन की मजलिस का नाम सुन के लोग दूर दराज से आते हैं। अभी मैं दराज से आया हूँ मजलिस पढ़ने के लिए, आपके लिए 50-60 किलोमीटर सफ़र करके, इसलिए अभी तक मेरा पसीना बह रहा है। तो ये हुसैन का सदका है। जब कभी किसी को खबर मिलती है कि हुसैन की मजलिस मुनक़िद की गई है, आदमी चाहे कितनी दूर का भी क्यों न रहने वाला हो, हुसैन के दर पर भागा हुआ आता है। आप याद रखिएगा, मजलिस इख्तिताम तक पहुँचेगी लेकिन ये दर हुसैन बंद होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये दर खुला रहना इस बात की दलील है, पैगंबर ने जो फरमाया था जिसको भी हिदायत चाहिए वो हुसैन के पास आए, दर हुसैन के पास आए। आज शियायान आलम दरवाज़ा अज़ा खाना को खोल कर बताते हैं जो नबी ने 1400 साल पहले बताया था, जिसको हिदायत चाहिए वो दर हुसैन पर आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जो मुझे मौजू दिया गया है, यकीनन मैं मौजू पे बेहतर बातें करूँगा, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक बात करने के लिए। चूँकि पहले मैं हुसैन की मुआरफी कराना चाहूँगा कि हम हुसैन की आज़ादारी करते क्यों हैं। आज 1400 साल होते आ रहे हैं, यकीनन हम आज़ादारी आज जोक दर जोक, शौक दर शौक, रोज़ बरोज़ हम इस आज़ादारी को ऊपर ले जाने की कोशिश, कभी तज़ल्लुली की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते हैं इस आज़ादारी को ऊपर ले जाएँ। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? भाई हमारे अफराद खाना में से लोग मरहूम हो जाते हैं, वालिदैन मर जाते हैं, दादा और अजदाद मर चुके हैं। खुदा सबको गरीक रहमत करे। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जितने भी मरहूमीन गुजर गए, गाना यार चीतुलुश यासीन, ज़्यादा ही तुलुस ना कर दूंगा ना यार फिला 1 साल ही तुलुश यासीन दिन मसलन बरसी मजलिस जैसिन मसलन 40वां जैसिन 1-2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद नंगा न यार अताल इतुलुस्मेद न अमाल इतुलुस्मेद न आबा व अजदाद सुकाल इतुलुस्मेद। लेकिन आया आज़ादारा ने मज़लूम करबला, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल के बाद भी आज हम हुसैन को उसी तरीके से याद करते हैं। ऐसा लगता है कि इसी मुहर्रम में ही हुसैन की शहादत हुई है। ये मौजिज़ा है हुसैन की आज़ादारी का। ये आप आज़ादारा ने मज़लूम करबला जो शौक दर शौक मजालिस हुसैन में आते हैं, ये आपका जज्बा है कि हुसैन की आज़ादारी को कम होने नहीं देता, रोज़ बरोज़ ऊपर ले जाता है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, अब यूँ रखिए, मुझे जो मौजूद दिया गया कि फलसफा क़ियाम इमाम हुसैन क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कौन, उसके बाद देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये क़ियाम क्यों किया था।
क्या ज़रूरत पड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला जाने की? क्या ज़रूरत पड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देने की? क्या ज़रूरत पड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने बनी हाशिम के नौजवानों की कुर्बानी देने की, अब्बास जैसे भाई के बाजू कटाने की, अली अकबर जैसे जवानों की कुर्बानी देने की इमाम हुसैन को ज़रूरत क्यों पड़ी? इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह यकीनन मुख्तसर वक्त में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके ज़रूर याद रखना होगा, जिस हुसैन ने क़याम किया था, जिस हुसैन ने दीन पैगंबर को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटाई थी, जिस हुसैन ने दीन पैगंबर को बचाने के लिए ज़ैनब की चादर लुटाई थी, जिस हुसैन ने दीन पैगंबर को बचाने के लिए अब्बास के बाजू कटाए थे, जिस हुसैन ने दीन पैगंबर को सहारा देने के लिए अली अकबर का सीना आगे किया था, जिस हुसैन ने दीन पैगंबर को बचाने के लिए अली असगर जैसे नन्हे मुजाहिद को दीन के लिए पेश किया था। आखिर सवाल यही है कि हुसैन को क्या मजबूरी आई? सवाल ये ज़हन में रखिए, आखिर तक क्या मजबूरी थी जिसके तहत इमाम हुसैन जद्द पैगंबर के जो सबसे पसंदीदा शहर को छोड़कर उस रेगिस्तान में चले गए? क्यों मदीना को छोड़ा हुसैन ने? क्यों हुसैन मक्के में न रहे? क्यों हुसैन करबला का सफ़र करके गए? इस सवाल का जवाब आज यकीन इसी मजलिस को मिल जाएगा। पहले यूँ याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, जिस हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर तो वफ़ात पैगंबर तब जब कभी हुसैन को देखते थे पैगंबर कभी मुस्कुराते थे, कभी आंसू बहाते थे। पहले ये देख लीजिए, जिस पैगंबर के हम कलिमा गो हैं, जिस पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कलिमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जिस पैगंबर का हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ते हैं, जिस पैगंबर के दीन पर हम होने का आज दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत है आया इस पैगंबर ने भी किसी पर नाज किया है कि नहीं किया है? तारीख कहती है, तारीख के औरात पलट कर देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। रावी है हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। मैं एक पार्चे में लपेट कर इमाम हुसैन को आगोश पैगंबर पर ला रही थी, जैसे ही पैगंबर के सामने लाई, खिदमत पैगंबर में लाई, पैगंबर की नज़र हुसैन पर पड़ी। अज़ीज़ान मज़लूम करबला, ज़ादारान मज़लूम करबला, आप सोचते रहिए जिसके घर में पिसर की विलादत होती है, बेटे की आमद होती है, बेटे की विलादत होती है, आप समझ लीजिए उस घर का समा क्या रहता है, उस अफराद खाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यहाँ पर हुसैन की विलादत हुई है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती, मैं हुसैन को लेकर आई पैगंबर की खिदमत में, जैसे ही हुसैन को मैंने पेश किया है, लेकिन हुजूर अकरम अपनी आगोश में लेते हैं, हाथों में लेते हैं, सीने से लगाते हैं, माथे पर बोसा देते हैं, पिशानी पर बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद हज़रत उम्मे सलमा कहती, मैंने देखा कि पैगंबर की आँखों से आंसू जारी है। हाय आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन की विलादत हुई है, पैगंबर आंसू बहा रहे हैं। आपको नहीं लगता कुछ उल्टा हो गया? हमेशा बेटे की विलादत होती है, हम खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांधते हैं, अपने अहबाब और अहबाब को बुलाते हैं, दोस्त को बुलाते हैं। हम आज तरीके से आज के एतबार हम देख लें तो अक़ीक़ा करते हैं, दावत देते हैं कि हमारे यहाँ बेटे की विलादत हो गई है। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने हुसैन को आगोश पैगंबर में दिया, जैसे ही पैगंबर ने अपनी आगोश में लिया है, पैगंबर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात है, आज तो बेटे की विलादत हुई है, आपको तो खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। पैगंबर का जवाब सुन लीजिए, पैगंबर क्या फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, तुम्हें तो सिर्फ इतनी खबर है कि आज मेरे घर में बेटे की विलादत हो गई है, मैं उन वाक़यात को याद करके रो रहा हूँ जो मेरे बाद मेरे इस लाल हुसैन पर पड़ेंगे। क्या रसूलल्लाह क्या हुआ इस बेटे के साथ? पैगंबर फरमाते हैं, जब मैं नहीं रहूँगा, न इसके बाबा रहेंगे, न इसकी माँ रहेंगी, इस हुसैन को एक रेगिस्तान में करबला के मैदान में ज़िबह कर दिया जाएगा, भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। भाई तमाम मुसलमानों का अकीदा है ना कि पैगंबर इल्म गैब रखते हैं, जानते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुसैन को ज़िबह कर दिया जाएगा। लिहाजा पैगंबर के आंखों से आंसू बहने लगे। कहे उम्मे सलमा, इस मेरे लाल को बेगौर व कफन को फेंका जाएगा, इन्हें ज़िबह कर दिया जाएगा, इन्हें भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा कहती, वहाँ से उसके बाद से जब मैं हुसैन को देखती थी, जब मेरी नज़र चेहरे अक़दस इमाम हुसैन पर पड़ती थी, मुझे वो वाक़या याद आता था जो पैगंबर ने मुझसे बयान किया था, मेरी भी आंखों से आंसू आने लगते थे। ये हुसैन है,
हुसैन को पहले समझ ली, फिर आपको हुसैन का जो क़याम का जो फलसफा है वो समझ में आएगा। जिस हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब तक जिंदा रहे, नाना की आगोश में रहे, नाना की गोद में पले हैं, जिस हुसैन के लिए पैगंबर ने फरमाया था मेरा लाल मेरा बेटा हुसैन है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जब हुसैन इसी मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं, हुसैन को दर पर ठोकर लगी है, बचपना है हुसैन का, हुसैन को ठोकर लगी और हुसैन ज़मीन पर गिर चुके हैं। एक मतलब पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मिंबर पर, पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जैसे ही देखा दरवाजे के सामने हुसैन गिर गए हैं, तारीख कहती है पैगंबर ने खुतबे को रोका है, पहले जाकर हुसैन को सहारा दिया है। मैं कहूँगा या पैगंबर, आज आपने अजीब सा एक तरीके से एक रविश अपनाई है, आपने खुतबे को छोड़ा, हुसैन को सहारा दिया। अजब नहीं पैगंबर मुझसे कह दे ए नादान तू जानता ही कहा है, आज मैं हुसैन को सहारा दे रहा हूँ, यही हुसैन मेरे बाद मेरे दीन को सहारा देगा। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही हुसैन होगा जो मेरे दीन को सहारा देगा। और यकीनन हुसैन को जो सहारा पैगंबर ने दिया था, उस एहसान को हुसैन ने फरामोश नहीं किया। करबला के मैदान तक इस पैगंबर की रविश को याद रखते हुए, एहसान पैगंबर को याद रखते हुए, हुसैन ने दीन पैगंबर की सेफ्टी के लिए, दीन पैगंबर को सेफ रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमानी, हम आते हैं, अपनी बात पर आते हैं। अब आप समझ गए, पहले आपको ये सोचने की ज़रूरत है पैगंबर हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, फिर हुसैन को कौन सी ये मुसीबत आन पड़ी कि जिसकी वजह से हुसैन मदीना छोड़ने पर आमादा हो गए। अज़ादारान मज़लूम, अब हुसैन के अज़ादार, हुसैन की मारिफत मुझसे बेशतर रखते हैं। बस मैं तज़क्कुर के लिए, सिर्फ याद दहानी के लिए सिर्फ एक दो वाक़यात आपकी अज़हान आलिया तक पहुँचाना चाहूँगा, ताकि आपको जो वाक़यात यकीनन आपके अज़हान आलिया में है उसकी रिपीट हो सके। मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूँगा। अज़ादारान मज़लूम में करबला, जो मोहब्बत पैगंबर ने हुसैन से की है, तारीख़ गवाह है, इतनी मोहब्बत पैगंबर ने शायद किसी से नहीं की है। जब फातिमा ज़हरा थी, फातिमा ज़हरा बेहद मोहब्बत क्या करते थे पैगंबर इस्लाम, कैसी मोहब्बत क्या करते थे, तारीख़ गवाह है। जब फातिमा ज़हरा पैगंबर के घर तशरीफ़ लाती थी, पैगंबर अपनी जगह से इस्तक़बाल फातिमा के लिए खड़े होते थे, फातिमा ज़हरा को अपनी जगह पर अपने मकाम पर बिठाते थे। जब फातिमा ज़हरा के घर जाते थे, फातिमा ज़हरा पैगंबर के इस्तक़बाल के लिए खड़ी होती थी और फातिमा ज़हरा पैगंबर को अपनी जगह पर बिठा देती थी। तो लिहाजा से बात ये समझ में आती है कि फातिमा ज़हरा से पैगंबर कितनी मोहब्बत करते थे। लेकिन अज़ादारान मज़लूम में करबला, जब इमाम हसन की विलादत हुई है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हुई है, जिसको पैगंबर ने अब ना कहा था कि मेरे लाल है, मेरे बेटे हैं हसन हुसैन, इसीलिए फरमाते यही मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। इतनी अहादीस पैगंबर की शान में फरमाया। पैगंबर ने आखिर यहाँ तक कह दिया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, पैगंबर से इतना नहीं कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पैगंबर आगे बढ़कर कहते हैं अहब्बल्लाह, खुदा उसे दोस्त रखेगा, रखता है या रखेगा, मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन को दोस्त रखता है। अज़ादारान मज़लूम में करबला, आप दोस्तदार हुसैन हैं ना, हुसैन को दोस्त रखते हैं, यकीनन खुदा आपको दोस्त रखता है। ये पैगंबर की ज़बानी कलिमात हैं। पैगंबर पर अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, खुदा उसे दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखे। अब बात समझ में आ गई अज़ीज़ान गिरामी। पैगंबर ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, मतलब ये कि पैगंबर कहना ये चाह रहे थे, ऐ मुसलमान, ऐ मेरे कलिमा गो, याद रखना हुसैन की निस्बत मुझसे वही है जो मुझे अपनी ज़ात से है। यानी पैगंबर कहना ये चाह रहे थे कि याद रखना, अगर तुमने मेरे बाद हुसैन को तकलीफ पहुंचाई तो तुमने हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाई बल्कि अपने पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, पैगंबर ने अपनी तरफ निस्बत दी हुसैन की, उसकी वजह यही है, उसका रीज़न यही है कि पैगंबर ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी हुसैन को तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। यकीनन तारीख में एक हदीस बयान करके मैं आपको दूसरे टॉपिक पर ले जाना चाहूँगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैगंबर कितनी मोहब्बत करते थे हुसैन।
हुसैन के साथ। फिर हुसैन करबला जाने पे मजबूर, क़याम करने पे मजबूर क्यों हो गए हुसैन अलैहिस्सलाम? अब मैं आपको अपने मकसद तक ले जाना चाह रहा हूँ। अब आप समझ गए हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे। तारीख़ के औराक हैं। इमाम पैगम्बर इस्लाम बाहर से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते फातिमा ज़हरा के घर से गुजर हुआ पैगम्बर इस्लाम का, देखा कि अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर रुके हैं हुजूर रुकने के बाद देखते हैं किसकी आवाज़ है? हुसैन के रोने की आवाज़ है। भाई घरों में बच्चे हैं, आपके खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। बच्चे रोते हैं ना, बच्चे गिरिया करते हैं, बच्चे रोते हैं, फरियाद करते हैं। जैसे पैगंबर ने देखा हुसैन रो रहे हैं, घर के अंदर दाखिल कहा फातिमा क्या बात है, हुसैन रो रहे हैं? कहा बाबा न जानाश हुसैन गिरिया कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। फातिमा जैसे ही जवाब दे चुकी, पैगंबर फरमाते ऐ फातिमा क्या तुम्हें नहीं पता जब हुसैन रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। दिवो इमाम हुसैन गाना यारा दसस इल्म सो की पैगंबर चिनार इमाम हुसैन ने मोहब्बत बात ना जुगाने नजर बार गोशन देखन गाना या छुच्चा सिन कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फलसफा चीन में। अब आइए फलसफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चीन में फलसफे अनुगाना अगर नजर बाना का तो जिस तरीके से पैगंबर इफ़्क हुसैन ला सहारा तासो पिना, पैगंबर हुसैन ला ज़ेरो युद्ध पिना, हुसैन ला जी खबर युद्ध पा कि ngaraई ngari ज़ात हुसैनिन कि जाशिक दीन पैगंबर ला ngare सहारा ताचा सिंदरे। लिहाजा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अज वफ़ात पैगंबर ही रहला सोच रही अपना। ये लोग जो आज हुसैन जो मजबूर हो गए करबला जाने पे, वो जब तक पैगंबर थे हुसैन सुकून से थे। लेकिन जब मुनाफिकत बढ़ गई, वो मुनाफिक जो लिबास तकवा पहनकर पैगंबर के साथ मुसलमान होने का दावा करते थे, मुसलमान होने का दावा करते थे, कलिमा गो होने का दावा करते थे, जैसे बाद अज़ रहलत पैगंबर लोग सर उठाने लगे। इसीलिए तो हदीस मासूम है ना, जुल्म जब सर उठाए तो सर उठाने न दो, इसलिए कि जब जुल्म सर उठाएगा तो ये हर जगह फसाद फैलाएगा। लिहाजा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मुनाफिकों ने अपना लिबास जो पैगंबर को दिखाने के लिए लिबास तकवा ज़ेबतन किया हुआ था, मुनाफिकों ने वो लिबास उतार दिया और मुनाफिकत का अपना लिबास ज़ेबतन किया और अयानन रोशन की तरह रोज़ रोशन की तरह सामने आ गए और मुखालिफत दीन पैगंबर करने लगे। समझ गया जान गिरामी, मुखालिफत दीन पैगंबर करने लगे। चंद नुकात मैं आपको इशारा करता हुआ आगे बढ़ना चाहूँगा। उन्हीं में से ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब बारी आई है, जब इमाम थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जद पैगंबर की जो रविश थी, पैगंबर की जो सीरत थी, सीरत पैगंबर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और उसकी जगह पर अलग अलग तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जो इस्लामी तरीके नहीं थे। पैगंबर की जो सीरत थी वो इस्लामी एतबार से इस्लामी थी। बाद अज़ वफ़ात पैगंबर जो रविश इख्तियार की गई है वो इस्लामी तर्ज पर हयात नहीं थी, वो इस्लामी एतबार से नहीं थे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा अगर मैं आज खामोश रहा तो बची कुची जो पैगंबर की सीरत है वो भी तमाम हो जाएगी। लिहाजा हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम करना मुनासिब समझा। दूसरी चीज़ ये कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो क़याम करना पड़ा उसकी दूसरी वजह ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा जो पैगंबर हुकूमत किया करते थे वो इस्लामी हुकूमत किया करते थे। बाद अज़ वफ़ात पैगंबर इस्लामी हुकूमत माशरे से ख़त्म होती गई और बादशाहत की हुकूमत आने लगी और बादशाह आकर अपने मकासिद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल करने लगे जिन मकासिद के लिए पैगंबर दीन इस्लाम को आगे बढ़ा रहे थे। इस्लाम वो मजहब था जिसमें तमाम कबाइल के लोगों के लिए राहें फराहम थी। लिहाजा उन राहों से हटकर गैर उस रास्ते की तरफ गए जो पैगंबर ने नहीं दिखाया था। बादशाहों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा कि अगर आज मैं क़याम नहीं करूँगा तो दीन पैगंबर जो इस्लाम नाम का जो दीन है वो ख़त्म होता जाएगा, इस्लामी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और बादशाहत वाली हुकूमत कायम होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़याम करने पर मजबूर करती है वो ये कि हुसैन जानते थे, इसलिए कि इमाम हुसैन पैगंबर की हुकूमत को भी देख चुके थे, इमाम अली की हुकूमत को भी देख चुके थे, इमाम हसन की हुकूमत को भी देख चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि पैगंबर जब तक बाहयात थे
उस वक्त जो अमवाल होता था, जैसे माल इमाम अगर होता था, उस अमवाल को, इस्लामी जो अमवाल होता था उसको पैगंबर इस्लाम गुरबा और मसाकिन में तकसीम किया करते थे। पैगंबर उन अमवाल से गुरबा की मदद करते थे, मिस्किनों की मदद करते थे, फुकरा की मदद करते थे। लेकिन हुसैन ने देखा बाद अज़ वफ़ात पैगंबर आज वहीं बैतुल माल गुरबा में तकसीम नहीं हो रहा है, गुरबा में मुनक़सिम नहीं हो रहा है, फ़ुक़रा में मुनक़सिम नहीं हो रहा है, बल्कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इमाम हुसैन अपनी आँखों से देखा वो बैतुल माल जो फ़ुक़रा का हक़ था, बादशाह अपनी हुकूमत को बचाने में उस माल को सर्व कर रहे हैं, यानी अपनी हुकूमत की सेफ्टी के लिए, इस्लाम की सेफ्टी के लिए नहीं, इस्लाम को महफूज रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हुकूमत के बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए, पर्सनल दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगा अगर मैं आज क़याम नहीं करूँगा तो ये बैतुल माल जितना भी आज तक गया है और आइंदा भी तब क़यामत इसी तरीके सिलसिले से जारी रहेगा और इस्लाम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त क़याम करना मुनासिब समझा। और उसके बाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस क़याम के लिए एक तरीके से मजबूर हो गए, उसकी वजह ये थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदावंद आलमीन ने जिन उमूर की हमारे लिए मुमानअत की थी, जिसके लिए हमारे लिए हराम करार दिया था, हुक्म दिया था ये काम न करो, हुसैन ने देखा कि बाद अज़ वफ़ात पैगम्बर वहीं हुक्म खुदा और हुक्म पैगम्बर की सरीहन लोग मुखालिफत कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि हुसैन ने देखा था कि पैगंबर ने अपने ज़माने में शराब को खुदा ने हराम करार दिया था, पैगंबर ने उसी हुक्म को लागू करते हुए शराब को हराम करार दिया था। मुसलमान उस वक्त जो बादशाह तख्त पर आए थे वो खुल्ला आयानन शराब खोरी किया करते थे, शराब में मस्त रहते थे, मौज मस्तियों में लगे रहते थे। ये वही उमूर थे जिसको पैगंबर और खुदा ने मना फरमाया था। लिहाजा हुसैन को लगा अगर आज मैं क़याम नहीं करूँगा तो याद रखिए ये जो दीन में जो थोड़ी बहुत जो मुहर्रमात अभी तक थोड़े बहुत जो मुहर्रमात बाकी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम करना मुनासिब समझा। अज़ीज़ान गिरामी यकीन आप गौर से सुन रहे हैं जो मौजूद दिया गया है कि किस बेस पे इमाम हुसैन ने फ़लसफ़ा क़याम क्या है, क्यों इमाम हुसैन ने क़याम किया। लिहाजा इन तमाम उमूर को याद रखिए, इन तमाम उमूर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़याम करने पर मजबूर कर दिया था। अज़ीज़ान ईमानी, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि लोग दीन इस्लाम की सरीहन मुखालिफत कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक पैगंबर मौजूद थे, जिंदा थे, बाहयात थे, लोग तकवा का लिबास पहने हुए थे। जैसे ही पैगंबर इस दुनिया से रहलत कर गए, लोगों ने लिबास से तकवा उतार दिया, लिबास से मुनाफिकत पहनकर सामने आ गए और उसके बाद सरीहन मुखालिफत इस्लाम करते हुए नज़र आए। लिहाजा उसके बाद वो इस्लाम की परवाह नहीं करने लगे और हक तलफी करने लगे, हक की परवाह करना छोड़ दिया। एक तो इस्लाम के तमाम कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया और हक़ की जो तलकीन पैगंबर ने की थी उस हक़ को भी उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया, हक़ की परवाह नहीं की। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनासिब लगा कि अगर मैं आज क़याम नहीं करूँगा तो इस्लाम के तमाम जो रूल्स पैगंबर ने हमारे लिए बताए वो ख़त्म हो जाएंगे और जो पैगंबर ने जो हुकूक बताए थे वो हुकूक सब सल्ब हो जाएंगे, दुनिया से हुकूक का नाम ही मिट जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनासिब समझा कि किसी तरीके से मैं क़याम करके इन हुकूक को भी बचाऊँ और दीन इस्लाम को भी बचाऊँ। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, अब आप समझिए मकासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकासिद सुनते रहिए। अब यकीन उलमा बयान करते रहते लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद ये था वो था। यकीन ये चीज़ें भी वो मकासिद हैं जिनने मजबूर कर दिया हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़याम करने पर। उन्हीं में से एक ये था, उन्हीं क़याम में से कि हुसैन ने क़याम किया, क़याम करने पर हुसैन मजबूर हो गए। एक वजह ये थी कि हुसैन ने देखा कि जब बनी उमैया के हाथ में हुकूमत आई है, लोगों को अंधेरों की तरफ ढकेल रहे थे। हुसैन ने देखा कि पैगंबर ने लोगों को अंधेरे से नूर की तरफ लाया था, आज बनी उमैया वाले फिर से नूर से उन्हें अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं।
तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए, अगर मैं आज क़याम नहीं करूँगा तो न जाने क़यामत तक आने वाली नस्ल को ये गुमराही की तरफ ले जाएंगे, और ये न जाने क़यामत तक ये लोगों को अंधेरे की तरफ धकेल देंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर क़याम करना मुनासिब समझा। अज़ादारान मज़लूम करबला, उसके बाद यूँ रखिए, यूँ साहब याद रखिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग आते थे इस तरीके से। लोग आते थे आने के बाद कि या पैगम्बर हम आप पर ईमान रखते हैं, हम आप पर ईमान, कुरान की सरहियन आयत है ना कि क़ालतिल अअराबु आमन्ना, आकर कहने लगे या पैगम्बर हम आप पर ईमान रखते हैं। खुदा का हुक्म, या पैगम्बर इनसे कह दीजिए ये ईमान नहीं रखते, इनसे कह दीजिए बल्कि ये मुसलमान अभी हुए हैं। ईमान और चीज़ है, मुसलमान होना और चीज़ है। लिहाजा बाद वफ़ात पैगम्बर यही हुआ था, जब तक पैगम्बर के साथ थे दावा कर रहे थे या पैगम्बर हम तो आपके साथ हैं। बाद पैगम्बर लिबास उतार दिया और पैगम्बर की औलाद के ही दुश्मन बन गए। उन्हीं रीज़नों में से एक रीज़न, जिस रीज़न की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था, क़याम करने पर एक तरीके से हुसैन मजबूर हो गए थे। उन्हीं रीज़नों में से एक रीज़न ये था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में जब इराक़ी हुकूमत थी, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, उसके बाद जो उनका जो हुकूमत की तरफ हुकूमत करने के लिए जो शख्स आया था, उनका जो बनी उमैया का जो सरगना था, हुकूमत करने आया था इराक़ में, उनका जुमला सुनिए अज़ीज़ान ईमानी, उनका जुमला सुनिए। जैसे अली को शहीद कर दिया, हुकूमत बनी उमैया के हाथ में आई, आने के बाद पहला खुतबा देते हुए बनी उमैया का सरगना कहता है, ऐ लोगों याद रखना मैं तुम्हें नमाज की ताकीद करने नहीं आया हूँ। जुमला सुनते रहिए आज़ादारान मज़लूम करबला, सरगना का जुमला सुनिए। कहता है बनी उमैया का सरगना कहता है, ऐ लोगों मैं तुम्हें नमाज की तलकीन करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें नमाज की ताकीद करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें रोज़े की तलकीन करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आया हूँ इराक़ तो आप पर हुकूमत करने के लिए आया हूँ। ऐ लोगों याद रखना जो भी मेरी हुकूमत की मुखालिफत करेगा मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को देखा, देखने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़याम करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद दूसरा तारीख़ी जुमला सुनते रहिए, जब बनी उमैया के हाथ में जब हुकूमत आई है, हाथ में हुकूमत आई है, आने के बाद जब मुनाफिक सामने आए, हुसैन के दुश्मन खुलकर सामने आए हैं, एक मुनाफिक जो बुजुर्ग भी था, ज़ईफ़ुल उम्र था, काफ़ी एज्ड था, आने के हालांकि नाबीना था, जब उन्हें पता चला कि बनी उमैया के हाथ में, आखिरी जुमला सुनते रहिए, मैंने मजलिस को तमाम कर दी, आखिरी जुमला, वो शख्स आकर के नाबीना है, नहीं जानता है, लेकिन बुग़्ज़ पैगम्बर रखता, पैगम्बर का दुश्मन है, हुसैन का दुश्मन है। एक मरतबा जैसे उसको खबर मिली कि बनी उमैया के हाथ में हुकूमत आई है, खिताब करते हुए वो नाबीना कहता है, ए बनी उमैया वालों याद रखना आज हुकूमत आपके हाथ में आई है, इस हुकूमत को हाथ से जाने न देना, इस हुकूमत को हाथ से जाने न देना। अगर आज हुकूमत तुम्हारे हाथ से निकल गई तो कभी फिर हुकूमत आपके हाथ में नहीं आएगी। ए बनी उमैया वालों याद रखना, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी जो तुम्हें डराया करते थे, जन्नत की लालच दिया करते थे, जहन्नम का खौफ दिलाया करते थे, ये सब झूठ है, ये पैगम्बर की एक सियासी चाल थी जिसकी बिना पर लोगों को जन्नत और जहन्नम से डराया करते थे। अब आप बताइए आज़ादारान मज़लूम, अब हुसैन के चाहने वाले, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बगौर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आया अब भी आप कह सकते हैं कि हुसैन ने क़याम क्यों किया? मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने पहले सवाल किया था मजलिस के आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ज़िंदगी रही फिर कभी तो इंशाअल्लाह फिर करगल के सवाल मैं पूछूंगा। पहले मैंने सवाल किया था क्यों हुसैन ने क़याम किया, अभी तक मैं आपको जवाब देता रहा कि हुसैन ने क़याम क्यों किया। तमाम रीज़न्स को मैंने एक एक करके बता दिया, इन रीज़नों की बिना पर, इन वजहों की बिना पर, इन मुश्किलात की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़याम करने पर मजबूर हो गए थे। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अब भी इन जवाबात के सुनने के बाद क्या आप में से कोई कह सकता है, क्या उनमें आप में से कोई कह सकता है कि हुसैन ने क्यों क़याम किया? मदीने में रहते आराम से,
हाय आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शौक़ से नहीं छोड़ रहे थे इमाम हुसैन के मकासद के लिए, कि हुसैन ने जो जिस मकसद के लिए क़याम किया था, क़याम का मकसद हुसैन का वो आखिरी जुमला है जब मदीने वाले हुसैन के पास आकर कहते हैं, मौला हुसैन आप क्यों जा रहे हैं, आप तशरीफ़ रखें ना हुसैन, आप तो हमारा सहारा है हुसैन, अगर आप जाएंगे तो हम बेवारिस हो जाएंगे, हम तो बेमौत मारे जाएंगे, ए हुसैन आप तशरीफ़ रखिए। हुसैन ने आखिरी जुमला क्या कहा था, मैं लोगों याद रखना, मैं कोई जंग के गरज से नहीं जा रहा हूँ, कोई मैं हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूँ, कोई मैं तख्त व ताज के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरा मदीना छोड़ने का मकसद ये है, मैं अम्र बिल मारूफ करने जा रहा हूँ, नहीं अज़ मुनकर करने जा रहा हूँ। हुसैन देख चुके थे, इसलिए कि दुनिया से अम्र बिल मारूफ ख़त्म हो चुका, नहीं अज़ मुनकर ख़त्म हो चुका। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए क़याम करने पर। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी अब जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आवाज़ उठाएंगे, जुमले हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आप आवाज़ें उठाएंगे उतनी आपको ज़्यादा क़ुरबानियाँ देनी पड़ेंगी। तो लिहाजा जब कभी जुल्म सर उठाता है उसको वहीं पे दबाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको मुश्किलात झेलनी पड़ती है। हाय आज़ादारान मज़लूम करबला, मेरा वक्त तमाम हो रहा है, लिहाजा दामन वक्त में गुंजाइश न होने की वजह से मैं आप तमाम लोगों से माज़रत ख़्वाही करते हुए अपनी बात तमाम करना चाहूँगा। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज दूसरी मुहर्रम आई है, अय्याम अज़ा की आज दूसरी तारीख आ गई। कितने शौक़ से हम इंतज़ार कर रहे थे, मुहर्रम ले बेता मुहर्रम होंगे अच्छी गाना यारी दो सियाह लिबास को गाना यार अच्छी ज़ेरेन दी ज़ेरेन की हुसैनी अज़ा लफ्ज़ ये लिबास ज़ेब तन करने के बाद किसी के ऊपर ज़ेब नहीं देता कि कोई अपने लबों पर तबस्सुम लाए, कोई मुस्कुराए। आज़ादारान मज़लूम चिद्दी लिबास में चीज़ खुद खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जब कभी तू नक़ो लिबास यार सियाह लिबास ज़ेब तन बस, उसके बाद आपका दिल मग़मूम रहता है, हमेशा आपको सिर्फ रोने का मन करता है। क्यों आज़ादारान मज़लूम करबला, क्यों रोते हैं आप, क्यों रोने का मन करता है? हाय आज़ादारान मज़लूम, इसलिए कि जो आदमी आप पर एहसान करे ना, आपको उसके एहसान को फरामोश नहीं कर सकते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बाल बच्चों की क़ुरबानी देकर करबला के मैदान में जो पूरे मुसलमानों के ऊपर जो एक एहसान किया था, वो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में से जो सियाह लिबास ज़ेब तन किए हुए इस हुसैन के एहसान को आज तक फरामोश नहीं किए गए। आज़ादारान मज़लूम करबला, वुरूद करबला के आज मसाइब पढ़ने हैं। वुरूद करबला इमाम हुसैन ठपू मदीने नस्कत तैयार सो सफल अच्छा तैयार सो मदीनी मर्द जन हुसैन खिदमत लयो सना ची फरियाद बेदा का हुसैन यारा मसोजू यारा मसोजू। क्यों आज़ादारान मज़लूम करबला, क्यों लोग आ रहे थे हुसैन के पास? सब जानते थे हुसैन हमारी आखिरी आस है, हुसैन हमारा आखिरी सहारा है, अगर हुसैन आज निकल गए तो हम खुद ब खुद बेमौत मारे जाएंगे। आज़ादारान मज़लूम करबला, तारीख़ गवाह आज अय्याम मजलिस की 2021 की 1443 की पर दूसरी तारीख़ आ गई। वुरूद करबला के मसाइब पढ़ने हैं। आज़ादारान मज़लूम करबला, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला चला है, कहाँ से चला है? मदीने से चलाए। भाई आप परदेश में, यकीन आपके परदेश में है ना, आपके बच्चे परदेश में हैं, आपके बेटे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मेरी माँ बहनें जो इस मजलिस को गोश कर रही हैं, सुन रही हैं, वो समझ सकते हैं। मुस्लिमों नहीं मन कमज़ोर हो, मदरसी को कमज़ोर हो मत। जब हमारा कोई लाडला सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, आप सुनते रहे आज़ादारान मज़लूम करबला, जब हमारा कोई लाल, हमारा जिगर गोशा, हमारा नूर नज़र सफ़र पर जाने के लिए तैयार होता है, आपको पता है आपका बेटा बाहर तालीम के लिए जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, सबक क्यों पढ़ने के लिए जा रहा है, तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, या आपका बेटा नौकरी करने जा रहा है। बेटा जब घर पर आता है तो हम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन यहीं लाल आपका, यहीं बेटा आज जब उसकी छुट्टी पूरी हो गई वापस परदेश जा रहा है। परदेश, परदेश, खुदा किसी को परदेश की ज़िंदगी, परदेशों की ज़िंदगी न दे। परदेश एक ऐसा मकाम होता है जिसमें आप समझ लीजिए, परदेश में हमें खुदा ने हुक्म दिया कि अगर आप रोज़े की हालत में सफ़र पर जाते, परदेश में जाते हैं, तो आप सफ़र का आप रोज़ा ना रखिए, आपको मुश्किलात हो जाती है। नमाज के लिए खुदा ने कहा नमाज को कसर कर दीजिए। आज़ादारान मज़लूम करबला, जब आपका लाल सफ़र पे जाने के लिए आमादा होता है, आमादा ये सफ़र होता है, आप सुनते रहिए, जब माँ बच्चे को विदा कर किस तरीके से विदा करती है।
आप अपने बच्चों को विदा करते हैं, किस तरीके से विदा? मैं सिर्फ आपसे एक ईमान का सवाल करूंगा, भाई मेरी माँ, आपका बेटा तो वापस आएगा ना, 2 महीने बाद, साल बाद वापस आएगा ना, 6 महीने बाद वापस आएगा। क्यों माँ ड्यूटी तक आती है? क्यों माँ दरवाजे तक आती है? क्यों माँ रोड तक आती है, गाड़ी तक आती है? आकर बार बार बच्चे को गले लगाती है। गले लगाकर क्या कहती है माँ? ए मेरे लाल होशियार बसे सो है यार, सफल से होशियार बसे सो है, सफल तकलीफ शाद होशियार बसे सो। अल्लाह अकबर। माँ है, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। माँ को ये भी खबर है कि मेरा लाल वापस आने वाला है, लेकिन माँ का दिल कबूल नहीं करता, वालिद का दिल कबूल नहीं करता। गंता गाड़ी सकपसों से बार बार लग पाई जुक बेंची बाय बाय सेंची खुदा हाफिज सेंची गाना यार या मुस्लिम छी मतामत चाची मतामत जो यारा पता दो आप जो ऊंचा सिंजर है, लेकिन अल्लाह अकबर। माँ का दिल ना कहाँ से बढ़ता? माँ समझती है मेरा नूर नज़र मेरी आँखों के सामने रहे, आज नूर नज़र दूर हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं। हाय आज़ादारा ने मज़लूम में करबला, जो मदीने वाले हुसैन से इतनी मोहब्बत किया करते थे, आज हुसैन मदीना को छोड़ने के तैयार हो गए हैं। लोग जोग दक जोग हुसैन के पास आए हैं, गुजारिशात लेकर आए हैं, इल्तिमास करते हैं आका हुसैन आप सफ़र पर न जाइए। अल्लाह अकबर। तारीख का औराक है, हुसैन मदीना छोड़ चुके हैं। आखिर में जब हुसैन मदीने से बाहर निकले हैं, निकलने के बाद एक मरतबा एक मकाम पर पहुँचे हैं, हुसैन मक्के को विदा करके सफ़र में निकले हैं। यहाँ से यजीदी फौज का एक सालार पहुँचता है, एक काफिला पहुँचता है, हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर हुसैन का रास्ता बंद कर देता है। हुर इब्न यजीद रियाही का आपने नाम सुना होगा। हुर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगे जाने से मना कर दिया, कहा आप कूफे नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यहाँ से हुसैन को मजबूर करके अपने साथ ले गया है। यहाँ से यजीद को ख़त लिख दिया, मैंने हुसैन को गिरफ्तार कर दिया है, मैं हुसैन को उसी जगह लाऊंगा ए यजीद जहां तू चाहता है। अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला वारिसों सिंधे हुसैन करबला दिन उसको तयन वक्त की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला थन मना। एक मरतबा इमाम प्यार रावी कुनी बयान किताब मकातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असफ़ वफ़ादार ज़ुलजना दुल्लमन उसके में सु आगे नहीं बढ़ रहा है। लिहाजा एक मरतबा इमाम हुसैन अपने असफ़ादार से कहते हैं, असफ़ादार क्या बात है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बेज़बान हैवान ने शायद इमाम को जवाब दिया। तारीख़ कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से अपना 5 से 6 घोड़े इमाम ने चेंज कर दिए ताकि आगे सफ़र कर सके, लेकिन सफ़र आगे नहीं बढ़ा। कोई सा भी घोड़ा था आगे नहीं बढ़ रहा था। हुसैन ज़मीन करबला में पहला कदम मैं कहूँगा आका आज आपका करबला में पहला कदम है आका, और 8 दिन बाद होंगे इसी करबला की ज़मीन पर आपके जिस्म के टुकड़े होंगे। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है हुसैन ने बनी असद के लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा इस ज़मीन का नाम क्या है? बनी असद के बुजुर्गों ने कहा आका इस ज़मीन का नाम नई नवा है। कहा और कोई नाम? कहा इस ज़मीन का नाम शत्ते फुरात है। कहा इसके अलावा कोई और नाम होगा? कहा इस ज़मीन का नाम करबला। अल्लाह अकबर। हुसैन को जैसे ही करबला का हुसैन के कानों तक आवाज़ आई है, करबला का नाम हुसैन सूख चुके। अब्बास से कहते भैया अब्बास हमारियों को बिठा दो, खेमे लगाना शुरू कर दो, माँ बहनों के लिए पर्दे का इंतज़ाम करो, अरे हमारा मकसद आ चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनी असद के लोगों से खिताब करते, 2 चीज़ों की इल्तिजा करते हैं। ए बनी असद के लोगों, ये ज़मीन मैं हुसैन खरीदना चाहता हूँ, मैं यहाँ चंद दिन के लिए क़याम करना चाहता हूँ। बुजुर्गियों से अच्छी सी रहती, या हुसैन ये रहती क़याम मबजू, या हुसैन ये रहती क़याम मबजू, दुआ फन बलाई जगैन। आज तक जितने भी अम्बिया और औसिया इस ज़मीन से गुजरे हैं,
वो ठोकरों से दो चार हो चुके हैं। हुसैन आगे बढ़िए, यहाँ पर न रुकिए। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया मेरा मकसद आखिरी यही है, मैं ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। आज़ादारान मज़लूम करबला, आज हम करगिल में रहकर, इस इदारे में रहकर हुसैन की उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं, लेकिन ए आज़ादारों, आप ये ना सोचिएगा आप हुसैन को याद करते हैं। करबला के मैदान में भी हुसैन ने आपको फरामोश नहीं किया। हुसैन ने वसीयत करते हुए फरमाया, ए बनी असद के लोगों, मेरी एक दो वसीयतें हैं, उनमें से एक वसीयत ये है, जब मेरा चाहने वाला कोई ज़ाहिर करबला की ज़ियारत के लिए आए, अरे मेरे ज़ाहिर को 3 दिन रहने की इजाज़त देना। अरे मेरे ज़ाहिर को मेरे कब्र की निशान बता देना। ए बनी असद के लोगों, 10 मुहर्रम को हमें शहीद कर दिया जाएगा, हमारे लाशों को दफना देना। मैं कहूँगा आका, रोज़े आशूर 12-13 मुहर्रम तक आप और आपके असहाब के लाशें बेगौरो कफन जमीन पर पड़े हुए हैं। जनाबे ज़ैनब का आखिरी जुमला, ए भैया ज़ैनब को माफ कर देना। अरे ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। ए भैया, अगर मेरी चादर होती, मैं अपनी चादर से आपको कफन दे देती। ए भैया, दुश्मनों ने मेरी चादर छीन ली है, मैं बेरिदा हो चुकी हूँ, मुझे माफ कर देना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल अअला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़ि दिसतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। खुदाया बिहक़्क़ि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इस क़लील से अमल को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। खुदाया हम जब तक ज़िंदा